ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरा स्क्रीन देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग ये आचार्य सीरीज पढ़ रहे थे अलग अलग आचार्यों के विषय में। आज हम अभी तक हम माधवेंद्र पुरी को कंप्लीट किए थे। आज हम ईश्वरपुरी से सुनना शुरू करते हैं, ईश्वरपुरी के बारे में। तो देख पा रहे हैं ये सौरभ प्रभु? जी प्रभु जी। हाँ, पढ़ना शुरू करिए। हाँ। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes in his Anubhashya, Sri Ishwarapuri was a resident of Kumarahatta, where there is a now a railroad station known as Kamarhatta. Nearby there is another station named Halishara, which belongs to the Eastern Railway. This railway runs from the eastern section of Kolkata. Ishwarapuri appeared in a Brahmin family and was the most beloved disciple of Srila Madhavendra Puri. In the last portion of Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila 8.28231, it is stated, ईश्वरपुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवन स्वहस्ते करे न मल मूत्रादि मार्जन निरंतर कृष्ण नाम कराय स्मरण कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाय अनुक्षण तुष्ट हन पुरी तन्रे कैल आलिंगन वर दिल कृष्ण तोमर हाउ का प्रेम धन से हईते ईश्वर पुरी प्रेमर सागर. At the last stage of his life, Sri Madhavendra Puri became an invalid and was completely unable to move. And Ishwara Puri so completely engaged himself in his service that he personally cleaned up his stool and urine, always chanting the Hare Krishna Mahamantra and reminding Srila Madhavendra Puri about the pastimes of Lord Krishna. In the last stage of his life, Ishwara Puri gave the best service among his disciples. Thus, Madhavendra Puri, being very pleased with him, blessed him, saying, my dear boy, I can only pray to Krishna that he will be pleased with you. Thus, Ishwara Puri, by the grace of his spiritual master, Sri Madhavendra Puri, became a great devotee in the ocean of love of Godhead. Srila Vishwanath Chakravarti states in his Guru Ashtaka prayer, Yasya prasadat bhagavat prasado yasya prasadan na gati kutopi. By the mercy of the spiritual master, one is blessed by the mercy of Krishna. Without the grace of spiritual master, one cannot make any advancement. It is by the mercy of spiritual master that one becomes perfect, as vividly exemplified here. A Vaishnava is always protected by the Supreme Personality of Godhead, but if he appears to be an invalid, this gives a chance to his disciples to serve him. Ishwarapuri pleased his spiritual master by service, and by the blessings of his spiritual master, he became such a great personality that Lord Chaitanya Mahaprabhu accepted him as his spiritual master. Srila Ishwarapuri was the spiritual master of Sri Chaitanya Mahaprabhu, but before initiating Lord Chaitanya, he went to Navadvip and lived for a few months in the house of Gopinath Acharya. At that time, Lord Chaitanya became acquainted with him, and it is understood that he served Sri Chaitanya Mahaprabhu by reciting his book Krishna Lilamrita. This is explained in Sri Chaitanya Bhagavat Adi Khanda chapter 11. हाँ, To हरे teach others, एक मिनट। हाँ, तो क्या क्या पॉइंट्स कवर हुए इस सेक्शन में? कि कैसे वो अपने गुरु के सेवा किए, तो फिर गुरु से ब्लेसिंग्स मिला, इसके वजह से चैतन्य महाप्रभु उनको चूज किया अपने स्पिरिचुअल मास्टर एज स्पिरिचुअल मास्टर. हाँ, तो ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे और बहुत अच्छे से अपने गुरु की सेवा किए थे माधवेंद्रपुरी के अंतिम, जब लीला के समय, है ना, मल मूत्र मार्जन किए थे। तो इस कारण से ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के बहुत प्रिय हो गए थे, है ना। और उन्होंने माधवेंद्रपुरी को अपनी सेवा से प्रसन्न किया था। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर उसके बाद में
ईश्वर पुरी को अपने गुरु स्वीकार किया। तो चैतन्य महाप्रभु ईश्वर गुरु की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? गोपीनाथ हाँ, गोपीनाथ आचार्य के घर में रुके थे आचार्य के घर में। ईश्वर पुरी, जब वो अपनी मतलब नवद्वीप यात्रा पे थे। तो उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु की पहली मुलाकात वहां पे हुई थी, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु गया गए थे, और वहां पे जाकर के उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी थी, है ना। उसको अब हम आगे पढ़ते हैं। यस, पढ़िए। To teach others by example how to be a faithful disciple of one spiritual master, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, visited the birthplace of Ishwara Puri at Kumarahatta and collected some earth from his birthside. This he kept very carefully, and he used to eat a small portion of it daily. This is stated in Chaitanya Bhagavat Adi Khanda chapter 17. It has now become customary for devotees following the example of Sri Chaitanya Mahaprabhu to go there and collect some earth from that place. Chaitanya Charitamrita Adi Lila 9.11 purport. It was at the age of 16 or 17 that he, Lord Chaitanya, traveled to Gaya with a host of his students and there took his spiritual initiation from Ishwara Puri, a Vaishnava sannyasi and a disciple of Srimad Madhavendra Puri. Upon his return to Nadia, Nimai Pandit turned religious preacher, and his religious nature became so strongly represented that Advaita Prabhu, Srivas, and others who had before the birth of Chaitanya already accepted the Vaishnava faith were astonished at the change of the young man. TLC Prologue. Sri टीएलसी Krishna. मतलब कितनी सौ लॉर्ड चैतन्य, है ना। Okay. यहाँ पे एक हाँ. चीज इंटरेस्टिंग है कि चैतन्य महाप्रभु अपने बचपन में उन्होंने कभी भी ऐसे, जो बचपन की लीला है चैतन्य महाप्रभु की, एक स्कॉलर की लीला है। स्कॉलर मतलब वो हमेशा ऐसा दिखाते थे कि वो एक स्कॉलर है, और तर्क वितर्क करते थे, और हमेशा तर्क वितर्क में परास्त कर दिया करते थे अन्यों को। और कोई भी उनको प्रीचिंग करना चाहता था तो वो उसके साथ आर्ग्यूमेंट करते थे, है ना। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु की हैबिट थी। लेकिन और मतलब इसलिए उस समय उनके जो फ्रेंड्स, एक्चुअली जो फ्रेंड्स मतलब उस जब उनके जो समकालीन थे, गदाधर, हाँ, मुकुंद, मुकुंद थोड़े से सीनियर थे जरा से, और इस प्रकार से तो ये लोग चैतन्य महाप्रभु से उठना बैठना नहीं करते थे। इन लोग को लगता था कि ये जो निमाई है ये बहुत आर्गुमेंट करता है, बहुत लॉजिक्स बात करता है, मतलब ये मतलब बहुत सरल नहीं है, ये बिल्कुल टेढ़ा आदमी है, इसके साथ क्या बात करेंगे। और वो प्रार्थना करते थे अपने हृदय में कि भगवान आप इस पे कृपा करें कि आपका भक्त हो जाए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जब गया गए और माधवपुर से दीक्षा लेकर के आए, तब वास्तव में उनके जीवन में परिवर्तन आया। और ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु मतलब निमाई पंडित, क्या बचपन में किस चीज का इनका एक्सपर्टीज था, कौन से शास्त्र में एक्सपर्टीज था, है ना। एक तो व्याकरण में एक्सपर्टीज था, और एक न्याय में, लॉजिक में। आपने सुना है लॉजिक्स, लॉजिक सुना है आप लोगों ने, न्याय? हाँ प्रभु जी. एग्जाम्पल दीजिए कोई। एग्जाम्पल तो पता नहीं, मतलब नाम सुने हैं ना, यहाँ वैदिक स्क्रिप्चर के पाठ प्रभुपाद है वो. प्रभुपाद मेंशन करते थे अर्धकुक्कुट न्याय जैसे हाँ, कुछ। अर्ध कुकुटी न्याय, ये एक न्याय है। क्या होता है अर्ध कुकुटी न्याय? तो जैसे कि हमारा जो हेन होता है उसका, हम सोचते हैं कि हेन का जो पहली पार्ट है हेड, उसको हम खाली खिलाते हैं, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, एग होता है, लेकिन वो बैकएंड से निकलता है। तो हम सोचते हैं कि, लेकिन कुछ ज्यादा दिमाग वाला सोचते हैं कि अगर हम हेड को काट देंगे तो खाली हमको एग मिलेगा, मतलब विदाउट इनपुट हमको आउटपुट मिलेगा। इसको अर्धकुक्कुट नहीं बोलते, ऐसा कुछ। हाँ, क्या? तो आप देखिए मैं स्क्रीन पे आपको लगा रहा हूँ, विभिन्न प्रकार के न्याय होते हैं। अर्ध कुकुटी न्याय है ना, हाफ एंड थ्योरी बोलते हैं। ये भी आप लोगों ने न्याय देखा, ये कौन सा न्याय दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? उपमंडू का न्याय। उपमंडुक न्याय, है ना, डॉक्टर फ्रॉग्स फिलोसफी, है ना। प्रोपा जी इसको हमें बहुत बार ये किए हैं, ठीक है। और ये है सर्प रज्जु न्याय, मतलब सरप्राइज तो मतलब जैसे कि हम कोई रज्जु देख के हम सोचते कि सांप है, लेकिन सांप रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ जो। सर्प रज्जु न्याय मतलब वही, मतलब इल्यूजन,
है ना, कि भाई रज्जू को सांप समझ लेना और डरना, है ना, सर्प रज्जु न्याय, है ना। और ये न्याय तो बहुत फेमस है। सौरभ, देख रहे हैं इस न्याय को, क्या दिख रहा है ये? जी प्रभु जी, है ना? ब्लाइंड मैन एंड हाँ, अंध पंगु न्याय, ये न्याय है सब, है ना। ये न्याय सुना है आपने, काकतालीय न्याय? काकतालीय न्याय। मैं ये नहीं सुना था। एक बार की बात है, एक पेड़ था, तो पेड़ में फल पक गया था। कौन सा पेड़ था? ताल का पेड़ था। तो ताल का जो फल था वो पक गया था। तो वो पक गया था, वो गिरने ही वाला था। लेकिन जैसे ही वो गिरने वाला था, वहां पे जाकर के एक कौवा बैठ गया। जैसे कौवा बैठ गया तो फल गिर गया। तो कुछ लोग कह रहे कि नहीं, एक्चुअली कौवा बैठा इसलिए फल गिरा। कुछ लोग कह रहे नहीं, फल को तो गिरना ही था, चाहे कौवा बैठता चाहे ना बैठता। तो आपस में लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट चलता रहा, है ना। जिसको कहते हैं काकतालीय न्याय। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जीव भौतिक जगत में इस कारण से गिरा, कुछ कह रहे हैं उस कारण से गिरा, कुछ कह रहे हैं उस कारण से गिरा, कुछ कह रहे हैं कि वहां पे भगवान की सेवा नहीं करी इसलिए गिर गया, कुछ कह रहे हैं जीव की तो प्रवृत्ति है गिरना है, वो तो गिरा है। कुछ कह रहे हैं जीव तो गिरा ही हुआ है, नित्य नित्यबद्ध है। तो इस तरीके से आर्ग्यूमेंट कर रहे, भाई आर्ग्यूमेंट से क्या होगा? वो ताल का फल कैसे गिरा? कौवे से गिरा कि अपने आप गिरा? वो गिरा, उठाओ खाओ भैया। मतलब जीव कैसे गिरा इंपॉर्टेंट नहीं है, वापस कैसे जाएगा इंपॉर्टेंट है। इसको कहते, कौन सा न्याय कहते हैं इसको? काकतालीय न्याय। ये सब न्याय है, समझ रहे, अलग अलग वेरायटी के न्याय है ना। हम्म। शाखा चंद्र न्याय। ऐसा लगता है कि जो शाखा से चंद्रमा प्रतीत हो रहा है। देखिए क्या लिखो, पढ़ो क्या लिखा है। ऑल्दो द मून, appears to be located in the branch of a tree, it is actually situated very far away. Similarly, none of the avatars or incarnations of Lord Krishna are within this material world, but they are visible by the causeless mercy of the Lord. We should not consider them to belong to this material world, as stated by Lord Krishna in Bhagavad Gita 9.11. Avajananti mam mura manushim tanumashritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. यस। Fools deride me. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that be. तो क्या एग्जाम्पल दिए? शाखा चंद्र न्याय। चंद्रमा शाखा से निकलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन चंद्रमा का और शाखा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन नहीं है ना। दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेड़ की शाखाओं से चंद्रमा प्रकट हो रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान भौतिक जगत के पार्ट नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। पर इस भौतिक जगत में जो लीला विलास करते लगता है कि वो भौतिक जगत की पार्ट है। तो क्या इसको कैसे प्रूव किया गया? इसके न्याय से, शाखा चंद्र न्याय। तो ये विभिन्न प्रकार के न्याय है। तंडुल वृश्चिक न्याय, है ना। जैसे मेटलिस्टिक बोलते हैं कि भाई जो जो स्कॉर्पियो है वो कहाँ कहाँ से, मतलब वो कहते हैं जीवन कहाँ से आया? रसायनों से आया, है ना। जैसे लगता है कि चावल से, है ना, क्या कहते हैं, बिच्छू निकला। अरे भाई चावल से बिच्छू नहीं निकला, बिच्छू के अंडे रहे होंगे, अंडे से बिच्छू निकला, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि चावल से बिच्छू निकला। उसी प्रकार से ऐसा लगता है कि मैं जो केमिकल, ऐसा लगता है कि जो जीवन जो है वो रासायनिक तत्वों से निकला। नहीं, जीवन तो अलग है। लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, वो केमिकल से लाइफ नहीं बनती है। तो इसको क्या बोलते हैं? तंडुल वृश्चिक न्याय। जैसे समझ रहे हैं, एग्जाम्पल समझ आया? हाँ? जी प्रभु जी। ये सब न्याय है। ये तो फेमस न्याय आप जानते हैं। गडुरी का प्रवाह नाय। गडोरी का प्रवाह न्याय मतलब हाँ, हड़ अभिषेक, ओके ओके, हाँ। गोट्स, जैसे गोट ये होती है ना। अजय गल स्तन न्याय। तो अजय के गले में ऐसे लगता है कि अजय मतलब बकरे के गले में ऐसा लगता है स्तन है, वहां से दूध नहीं निकलता। समझ रहे हैं? तो ये जी सब प्रभु। न्याय है ना। अर्ध कुकुटी न्याय फेमस न्याय है ये मुर्गी कुकुटी मैंने मुर्गी होता है ना, इनने क्या बतख बना दिया। तो दीज आर कॉल्ड न्याय लॉजिक्स। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के न्याय होते हैं। बहुत सारे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्याय आर देयर। न्याय शास्त्र, ये बहुत साइंस है, ये बहुत बड़ा।
न्याय सूत्र, विभिन्न वैरायटी ऑफ न्याय। तो ये सब न्याय के एक्सपर्ट थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। ये न्याय शास्त्र कहलाता है। ये सब आप जो देख रहे हैं, न्याय। ये देख रहे हैं। एनीवे, तो समझ गए ना आप लोग, विभिन्न वैरायटी के न्याय। तो चैतन्य महाप्रभु ये सब न्याय शास्त्र के मतलब एक्सपर्ट थे, लॉजिक आर्ग्यूमेंट करते रहते थे। और कोई उनको पसंद नहीं करता था प्रैक्टिकली, लेकिन प्रार्थना करते रहते थे कि भाई ये जो व्यक्ति है ये भक्त बन जाए। और ये भक्तों की प्रार्थना का असर था कि चैतन्य महाप्रभु फिर भक्त बन गए। कब बन गए भक्त? जब ये जगन्नाथ ए सॉरी गया गए और उन्होंने ईश्वरपुर से भेंट करी। उसके बाद से ये न्याय और व्याकरण के आर्गुमेंट नहीं करते थे। उसके बाद से तो भैया ये भावावेश में रहते थे, भक्ति करते थे। कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा तारा बल, जपिते जपिते करिल पागल। चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु को बोल रहे हैं, गोसाई कौन सा मंत्र दे दिया आपने कि जपते जपते पागल हो गए? है ना? ये कब हुआ? ये सब दीक्षा के बाद हुआ, गया जाने के बाद। ईश्वरपुर गया में रहते थे उस समय। ठीक है, आगे पढ़िए। Sri Krishnadas Kaviraj Goswami has described in Sri Chaitanya Charitamrita that the first sprout of the desired tree of devotion was manifested in the person of Sri Madhavendra Puri, and that sprout developed into a sapling in the person of Sri Ishwara Puri, and in the person of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who was also the gardener himself. That sapling became a trunk of an enormous tree, the desired tree of devotion. यस, कृष्ण Chaitanya, गोस्वामी क्या एनालॉजी दे रहे हैं कि जो भक्ति का कल्प वृक्ष है ना, वो कहाँ से फूटा? माधवेनपुरी से, है ना। एंड दैट स्प्राउट डेवलप्ड इनटू अ सैपलिंग, छोटा सा वृक्ष बना ईश्वरपुरी में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु में वो पूरा वृक्ष बन गया। तो राधा कृष्ण की भक्ति का जो बीज है, हमारे परंपरा में मानते हैं माधवेनपुरी से आया है। ये ध्यान रखिएगा, वो जो बीज है वो माधवेनपुरी से आया है। उससे पहले आज हमको लगता है राधा कृष्ण के उपास राधा कृष्ण मंदिर, उस जमाने में राधा कृष्ण नहीं को कोई जानता था, राधा कृष्ण की नहीं करता। कृष्ण अकेले खड़े रहते थे बेचारे, राधा को तो कोई जानता ही नहीं था। ये माधवेनपुरी ईश्वरपुर मुख्यतः चैतन्य महाप्रभु की देन है कि फिर राधा कृष्ण की उपासना करना शुरू किया। राधा कृष्ण है ना। लक्ष्मी नारायण की सेवा होती थी, सीताराम की होती थी, लेकिन राधा कृष्ण की नहीं। तो ये जो राधा है ना, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। राधा रानी कौन है और राधा रानी की प्रेम का एक्सटेंट क्या है, ये जगत को जनाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो उस चैतन्य रूपी वृक्ष के बीज कौन है? माधवेनपुरी। और छोटा सैपलिंग कौन है? ईश्वरपुरी। ऐसा चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में बताया गया है। पढ़िए। प्रभु जी, और एक पॉइंट है कि Chaitanya Mahaprabhu, who was also the gardener himself. हाँ, यस, Chaitanya गार्डनर Mahaprabhu, हिमसेल्फ। यस, hmm, हिमसेल्फ द गार्डनर। भाई उस भक्ति रूपी बीज को रोपण करके, उसको पोषण करके, उसको बढ़ाने भी महाप्रभु ही बढ़ा रहे हैं। और वही उसके मतलब ट्रंक भी है ना। वो डबल रोल में है चैतन्य महाप्रभु, गार्डनर भी है और गार्डनर भी है और क्या है साथ साथ? trunk. ट्रंक भी है। हम पढ़ते हैं इस सेक्शन को, हमको थोड़ा सा लिखना चाहिए। आदि लीला 9th चैप्टर पे है ना। इसको थोड़ा सा देख, हाँ, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। यही अवसर होता है कि जब हम सब चीज पॉइंट्स को पढ़ लें। अलग से तो समझ ही पढ़ेंगे नहीं, कब पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे।
तो तुरंत देख लेना कि क्या लिखा है, कोई भी रेफरेंस मिले देख लो भैया। आदि लीला चैप्टर 9 में इसका नाम ही है द डिजायर ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति का कल्प वृक्ष है ना। हम श्रीमत् कृष्ण चैतन्य देवं वंदे जगत गुरुम यस्य अनुकंपया स्वापि महाभिम संतरेत सुखम। तो क्या बोल रहे हैं, तम श्रीमद कृष्ण चैतन्य देवम वंदे जगत गुरु, तो जगत गुरु चैतन्य महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं। यस्य अनुकंपया स्व अपि, है ना, जिसकी अनुकंपा से, है ना, कुत्ता भी स्व अपि, स्वान कुत्ता भी महाब्धिम संतरेत सुखम, भौतिक संसार रूपी महाअवधि को, महासागर को बड़ी सरलता से पार कर जाए। Let me offer my respectful obeisances unto the spiritual master of the entire world, Sri Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy even a dog can swim across a great ocean. तो कुत्ता भी पार कर जाता है एक महासागर को। प्रभुपा जी ये मजेदार परपट लिखते हैं, कुत्ता तो थोड़ा थोड़ा तैर सकता है, लेकिन इतना बड़ा थोड़ा तैर सकता है कि वो समुद्र लांग जाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, है ना, यस्य अनुकंपया स्वापि महाब्धिम संतरेत सुखम, और सुखम आराम से पार कर जाता है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय द्वैत जय जय नित्यानंद, जय जय श्रीवासादि गौर भक्तगण, सर्वाभीष्ट पूर्ति हेतु जहाँ रस स्मरण, सर्व अभिष्ट पूर्ति हेतु जहाँ रस स्मरण, जिनका स्मरण करने सब अभिष्ट पूर्ण हो जाते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए सब प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण, जाने व न जानी करी अपन शोधन। तो इनके कृपा से मैं इस चैतन्य चरितामृत को मैं लिख रहा हूं, है ना, और कुछ हो ना हो कम से कम मैं अपने शुद्धिकरण के लिए लिख रहा हूँ। कोई भाई क्लास देने का अवसर मिलता है अपने को, तो ये क्या बोलना चाहिए कि मेरे मेरे कुछ वर्णन करने से किसी का कल्याण हो ना हो, लेकिन मेरा कल्याण तो हो रहा है कम से कम, है ना, एटलीस्ट मेरा शोधन हो रहा है, मेरा प्यूरिफिकेशन हो रहा है। ये भाव कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है। मालाक्रा स्वयं कृष्ण प्रेमामरतरु स्वयं, आगे ना देखिए, मालाकार मालाग्रह स्वयं कृष्ण प्रेमा प्रेमामर तरु स्वयं, दाता भोक्ता तत्फलानाम यस्तम चैतन्यमाश्रय। देखिए क्या इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, मैं उन चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ले रहा हूं जो माली है। अच्छा माली है और क्या है, और वो तरु भी है पेड़ भी वही है, और भोक्ता तत्फलम, उस फल के भोक्ता भी है तो अभी तक तो सौरभ प्रभु दो ही थे, मालाकार थे, मतलब माली थे और तरु थे, लेकिन अभी पता चला एक और है, क्या, भोक्ता, दाता भोक्ता। दाता भोक्ता। दाता भी है और भोक्ता भी, भोग भी रहे और बांट भी रहे तम चैतन्य आश्रय, उन चैतन्य महाप्रभु का हम आश्रय लेते हैं। माला ग्रह स्वयं कृष्ण प्रेम अमर तरु स्वयं, है ना, प्रेम अमर तरु स्वयं, दाता भोक्ता तत्फलानाम यस्तम चैतन्य आश्रय, हम उन चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लेते हैं। प्रभु कहे आमी विश्वंभर नाम धरी, नाम सार्थक है यदि प्रेम विश्व भरी। चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया कि मेरा नाम विश्वंभर है, तो मेरा नाम तभी सार्थक होगा जब मैं विश्व को भर दूंगा। किससे भर दूंगा, प्रेम से भर दूंगा
एत चिंती लैल प्रभु मालाकार धर्म नवदीपे आरंभिला फलोद्यान कर्म। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने एक माली की भूमिका निभाई और सबसे पहले गार्डन कहाँ पे ग्रो किया? नवदीप में ग्रो किया। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते आनी भक्ति कल्प तरु रोपिला सिंची छपानी। तो क्या बोल रहे हैं? Thus Lord brought the desired tree of devotional service to this earth and became its gardener. तो कहां से लेकर के आए? जैसे भगवान श्री कृष्ण पारिजात को स्वर्ग से लेकर के आके धरती पे ले आए, चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक जगत से भक्ति के बीज को ला करके, भक्ति के वृक्ष को ला करके उन्होंने धरती पे रोप दिया। कहाँ पे रोपा था? नवदीप में रोपा था। और इस भक्ति कल्प तरु को है ना, अपनी इच्छा से उन्होंने उसको सीड, उसके बीज को पानी दिया, है ना, सिंचन किया। फिर क्या हुआ? जय श्री माधवेंद्र पुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्प तरुते हो प्रथम अंकुर। ऑल ग्लोरी श्री माधवेंद्र पुरी, द स्टोर हाउस ऑफ ऑल डिवोशनल सर्विस ऑन टू कृष्ण। स्टोर हाउस कैसे है? He is the desired tree of devotional service, and it is in him the seed of devotional service first fructified. पढ़िए इसका पर्पट पढ़िए। Sri Madhavendra Puri, also known as Sri Madhav Puri, belonged to the disciple succession from मध्वाचार्य, Madhvacharya, माधवा नहीं चार्य, मध्वाचार्य। Madhvacharya, and was a greatly celebrated sannyasi. Sri Chaitanya Mahaprabhu was the third disciple descendant from Sri Madhavendra Puri. The process of worship in the disciple succession of Madhvacharya was full of ritualistic ceremony, with hardly a sign of love of Godhead. Sri Madhavendra Puri was the first person in that disciple succession to exhibit the symptoms of love of Godhead, and the first to write a poem beginning with the words Ai Dina Dayadranatha, O Supreme Merciful Personality of Godhead. In that person is the seed of Chaitanya Mahaprabhu's cultivation of love of Godhead. Yes. अब इसको भी जरा पता करें क्या है भाई? आई दीन दयाद्रनाथ, ये पोयम के बारे में मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। आई दीन दयाद्रनाथ हे मथुरा नाथ कदावो कदावलोकसे हृदयं त्वद् अलोक कात्रम दयिता भ्राम्यति किम करोमि हम। पढ़िए ट्रांसलेशन। O my Lord, O most merciful Master, O Master of Mathura, when shall I see you again? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. O most beloved one, what shall I do now? What shall I do now? दयिता भ्रम्यति किम करोमि हम, क्या करूं मैं, है ना। तो देखिए ये जो कोई चीज, जैसे मान लीजिए जैसे ये एक्चुअली क्या है, मान इसको समझना थोड़ा सा मतलब एक, उसके लिए एक अलग काइंड ऑफ एनालॉजी लगती है। सपोज करिए आज एक बच्चा आया मेरे पास, वो मेरे से बोल रहा है कि प्रभु जी मेरा एक फ्रेंड है, तो हम बचपन से फ्रेंड्स हैं, तो अभी वो कॉलेज चला गया है और मैं दूसरे कॉलेज में आ गया हूँ, तो अभी हमारी फ्रेंडशिप मतलब अब उस लेवल पे नहीं रही जैसे बचपन से हम फ्रेंड्स थे। अब उसको नए फ्रेंड्स मिल गए हैं, तो पहले वो मुझसे रेगुलर बात करता था, लेकिन अब मैं जब फोन लगाऊं तभी बस बात होती है, लेकिन पहले से बात नहीं होती है। तो मुझे उसको खोने का डर है, या खोने की एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब मुझे एक अंदर से एक एंजाइटी सी लग रही है, भय सा लग रहा है, एक अनइजीनेस सा लग रहा है ना, कि वो अब वो मतलब हमारे संबंध वैसे नहीं रहे जैसे हम पहले हुआ करते थे, है ना। अब उसकी लाइफ में प्रायोरिटीज अलग हो गई है और इस तरीके से। तो देखिए ये भावना को अपन जरा उस टर्म्स में सोचें, उस बच्चे को कैसा फील हो रहा है, उस बच्चे को लग रहा है यार कुछ खो ना जाए मेरे से, मतलब मेरा दोस्त है पुराने, बचपन से हम लोग मित्र हैं, ये ना वो, तो वो ही इज फीलिंग दैट मैं क्या करूं यार, क्या कर दूं, कैसे वो संबंध वापस हासिल हो सकता है ना, वो एजिटेशन है ना, अनस्टेडीनेस है ना, ये रहती है।
या कभी कभी जैसे कोई मान लीजिए किसी का कॉन्जुगल रिलेशनशिप के एग्जांपल से समझ सकते हैं, जिसे तो व्यक्ति को हमेशा एक ये रहता है कि यार वो सामने वाला व्यक्ति मुझसे दूर ना चला जाए, खो ना जाए। तो उसी तरीके से जब ये फीलिंग कृष्ण के लिए रहती है, यार है ना, कब मैं आपको वापस देखूंगा, है ना। गोपियों के अंदर ये भावना थी, ये यही भावना माधवेंद्रपुरी अपने इस स्तुति के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। ओ मास्टर ऑफ मथुरा, व्हेन शैल आई सी यू अगेन, कब आपको देखूंगा। नहीं होता, जब कोई चीज खोने वाली होती है, एक एक अंदर से एक अलग सी एंजाइटी रहती है ना। तो ये दिस इज अ सिम्टम ऑफ अटैचमेंट, है ना। ये एक अनस्टेडीनेस, एक हार्ट में हमेशा वो दुविधा बनी रहती है। लेकिन यही दुविधा जो किसी भौतिक वस्तु की बनी होती है वो दुख देती है, पर जब यही दुविधा कृष्ण के लिए बनी होती है वही भक्ति की, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इम्पेटस होता है। वही तो भक्ति है एक्चुअली में। कभी कभी आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप लोग अच्छे से जप कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हम लोग मंदिर में रहते हैं, जब मंदिर में रहते हैं, बेस में रहते हैं, तो मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छे से होता है और सब कुछ स्मूथली चलता है, मतलब अच्छा लगता है, भक्ति अच्छी लगती है, सुबह सुबह जब करते सब करते हैं। मैं घर गया कुछ दिन, तो जब भी हमारे घर में भी जगन्नाथ जी सब कुछ है, लेकिन देखिए भक्त संग नहीं होता ना, तो सुबह उठने का इम्पेटस नहीं होता, या जब करने का उस तरह का इम्पेटस नहीं होता जैसे बेस में होता है। बेस में तो रात के 12 बजे भी सोए, कल रात को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में 12 बजे सोया हूँ, लेकिन सुबह 4 बजे उठ गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रेशर रहता है कि भाई नहीं उठूंगा तो जूनियर्स क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, तो प्रभु सो रहे आराम से, हैं। या मैं 3 दिन अभी हम लोग गोवर्धन में थे, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल था और प्रैक्टिकली बहुत कम सोना हो पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं जब में एक दिन भी नहीं सोया, कि भाई मुझे पता है अगर मैं सो जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, अच्छा इतना बड़ा प्रचारक है, इतना बातें करते हैं, है, और देखो जब पे सो जाते हैं। तो एक मन में वो रहता है भावना, तो हम सम हाउ सेफ गार्ड रहते हैं। लेकिन जब घर में जाते हैं थोड़ा स्लैक हो जाता है, कौन देख रहा है यार, सो जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, या जैसा भी जब कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो वो फिर ऐसे 2-3 दिन बीत जाता है ना, फिर अंदर से बहुत एक एंजाइटी लगती है, यार क्या कर रहा हूं मैं अपने जीवन के साथ में, मतलब तुरंत तो लगने लगता है कुछ कुछ छूट रहा है, कुछ खो रहा है। इस बार मैंने फील किया है प्रैक्टिकली अनुभव, मुझे लगा नहीं यार बहुत हो गया, मैं इतने दिन मुझे छुट्टी लेके नहीं आना चाहिए, है ना। भाई आऊंगा, घर में आऊंगा, 3-4 दिन रुकूंगा, चला जाऊंगा, भले ही फिर से 2 कुछ दिन का फिर 3-4 दिन के लिए आ जाऊंगा, लेकिन इतना लंबा समय 10 दिन रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं इस बार गया तो 3-4 दिन घर पे रुक गया, फिर 4-5-5-6 दिन हम लोग वृंदावन यात्रा में चले गए पेरेंट्स के साथ। भले ही वृंदावन गए हम पेरेंट्स के साथ में, लेकिन फिर भी देखो पेरेंट्स के साथ में, अब हमारा होटल काफी दूर था मंदिर से, तो मंगल आरती जाना मतलब प्रैक्टिकली 6 दिन में मैं केवल 2 ही या 3 ही दिन जा पाया मंगल आरती, 3 दिन नहीं जा पाया, बहुत दूर था मंदिर। तो प्रैक्टिकली इसका अर्थ क्या है, फिर वो नहीं हो पाया। तो इतना एंजाइटी लग रहा था, कि लग रहा था यार क्या कर रहा हूँ, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है, सुबह मॉनिटर नहीं कर पा रहा हूँ। और वही बेस में होता मंदिर में तो बड़े स्मूथली हो जाता था। तो हम कृष्ण को नहीं जानते हैं, कृष्ण के विषय में हमारा इस तरह की भावना नहीं है, लेकिन कुछ हम अनुभव कर सकते हैं कि यार हमारा जिस दिन भजन साधन ठीक से नहीं होता है, हियरिंग अच्छे से नहीं होती है, कुछ दिन रीडिंग नहीं होती, मान लीजिए 4-5 दिन रीडिंग नहीं हुई, आप बिजी रह गए किसी कारण, रीडिंग नहीं हो पाई, तो 4-5 दिन के बाद लगने लगता है, कुछ खाली लगने लगता है, यार क्या हो रहा है, इतना एंजाइटी, एक एजिटेशन लगता है। तो ये एजिटेशन अच्छा है। किसी ने अभी महाराज से पूछा क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण महाराज से क्वेश्चन, नहीं कहाँ पे पूछ रहा, कहीं पे मैंने सुना, तो वो पूछे, कोई वो भक्त पूछे कि जब हमारी चैंटिंग नहीं होती, हाँ गोपाल कृष्ण महाराज से पूछा, तो महाराज ने कि महाराज कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सुबह से जप नहीं होता, तो हमेशा हम बहुत ध्यान ये रहता है कि कब जप होगा, कब जप होगा, क्योंकि सुबह किसी कारण से बिजी रह गए, घर में बिजी रह गए, तो नहीं हो पाया जब, ये फिर दिन भर एंजाइटी बनी रहती है। महाराज कहते एंजाइटी बहुत अच्छी है, दिस इज गुड एंजाइटी, कि भाई आपको जप नहीं हुआ तो आपकी एंजाइटी बनी हुई है। तो ठीक है, हमारा कृष्ण के प्रति एंजाइटी नहीं है, कम से कम कृष्ण भक्ति के प्रोसेस के प्रति भी एंजाइटी है ना, तो भी बहुत अच्छा है ना। और जब यही कंडेंस हो जाएगी, जब यही परफेक्शन की स्टेज पे पहुंचेगी, तो हम कृष्ण के लिए भी इस तरह की एंजाइटी रख पाएंगे। ओ मर्सीफुल मास्टर, ओ लॉर्ड ऑफ मथुरा, व्हेन शैल आई सी यू अगेन, कब मैं आपको वापस देखूंगा। प्रभुपाद जी कई बार ये व्यक्त किए अपने वक्तव्यों में, पर्सनली भक्तों के साथ जब बातचीत करते हैं इस तरह से, कि किसी ने पूछा प्रभुपाद जी आप आप मतलब क्या मिस कर रहे हैं, बोले मैं कृष्ण के साथ खेला करता था स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बहुत मिस कर रहा हूँ। इस प्रकार से प्रभुपाद जी कई बार आप पढ़िए, बहुत सारी बायोग्राफी अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी ने कई बार इस बात को बोला है।
जैसे प्रभुपाद जी जब गोप बालकों को देखते थे, मतलब ऐसे वो करते थे, उस पर्टिकुलर लीला को सुनते थे, उस फोटो को देखते थे। एक लीला में मैंने पढ़ा कि मेरे ख्याल से गिरिराज महाराज लिखे हैं कि जब वो जो फोटो है ना जिसमें कृष्ण विद हिज काउ हेड फ्रेंड्स, यहाँ देखता हूँ, कृष्ण विद काउ हेड फ्रेंड्स, ये फोटो को जब प्रभुपाद जी देखते थे, इस तरह की फोटोज को, तो प्रभुपाद जी को याद आता था कि मैं इस तरीके से कृष्ण के साथ में खेला करता था, इस तरीके से प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद इस फोटो को देख के बहुत इमोशनल हो जाते थे। ये वाली जो फोटो है, इस फोटो को देखकर जो राइट साइड में जो फोटो, स्पेशली इस तरीके से मैं खेला करता था। अब मैं somehow, ऑफ कोर्स कृष्ण ने उनको भेजा है यहाँ पे, लेकिन प्रभुपाद यूज्ड टू मिस हिम, है ना। तो बहुत ही हाई एडवांस स्टेज है ये डिवोशन का। तो इस तरीके से तो यही कहा, अरे मैंने बंद कर दिया क्या उसको, ये बात है। कहाँ गया वो चैतन्य चेतामृत, कहाँ चला गया? अच्छा, तो समझ पा रहे हैं? हाँ, तो ये भावना इनकी फिर होती थी माधवेंद्र पुरी की, और छठ गोस्वामियों की, इस तरीके से। ये हम पढ़ रहे थे। श्री ईश्वरपुरी रूपे अंकुर पुष्ट हईला, आपने चैतन्य माली स्कंधा उपजिला। पढ़िए। The seed of devotional service next fructified in the form of Sri Ishwara Puri. And then the gardener himself, Chaitanya Mahaprabhu, became the main trunk of the tree of devotional service. यस, तो यहाँ Purport. पे, हाँ, यही सेक्शन को वहां पे कोट किया गया है जो अभी अपन ने पढ़ रहे थे ना, बहुत बड़ा सेक्शन है। कुमार हट में ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है ना। निजा चिंत शक्तिमाली हय स्कंद है, सकल शाखार से स्कंध मूलाश्रय। By his inconceivable powers, the Lord became the gardener, the trunk, and the branches simultaneously. यस, परमानंद पुरी आर केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी आर ब्रह्मांड भारती, विष्णुपुरी केशवपुरी पुरी कृष्णानंद, श्री नरसिंह तीर्थ आर पुरी सुखानंद, ऐ नव मूल निकासिल वृक्ष मूले, ऐ नव मूले वृक्ष करेल निश्चले। Paramananda Puri, Keshav Bharati, Brahmananda Puri, and Brahmananda Bharati, Sri Vishnu Puri, Keshav Puri, Krishnananda Puri, Sri Narsimha Tirtha, and Shukhananda Puri. These nine sannyasi roots all sprouted from the trunk of the tree. Thus the tree stood steadfastly on the strength of these nine roots. यस, इस तरीके से पूरे डिवोशनल सर्विस रूपी कल्प वृक्ष का वर्णन है इस चैप्टर में, और चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे पार्षदों का वर्णन है ना। इनफैक्ट एक पूरे साल भर हम चल सकते हैं, अगर हर संडे को एक एक या दो दो पार्षद भी पढ़ेंगे तो मुझे लगता है पूरा साल निकल जाएगा। ये सब भक्तों को जाना चाहिए, परमानंद पुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी, ब्रह्मांड भारती, ये सब इन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है और कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ है जानने के लिए। एक्चुअली बहुत कुछ इतना क्यों है जानने के लिए, है ना, इससे हमारा मन लगा रहे भक्ति में, शास्त्र में। एनीवे, तो मेन टॉपिक पे आते हैं। यस, Sri Ishwara Puri appeared in the world on the full moon day of the month of Jyeshtha. He served his guru Sri Madhavendra Puri very faithfully, especially during the end of Sri Puripada's life. CC Antya 8.26. Sri Ishwara Puri in his travels to various holy places once came to Sridham Navadvip, where he stayed in the house of Sri Gopinath Acharya
At that time, Sri Nimai Pandita was absorbed in his pastimes of learning. Ishwarapuri entered Nadia Nagar in disguise, and thus no one could understand who he really was. That noble-minded gentleman was always absorbed in the mellows of devotion of Sri Krishna. He was thus extremely dear to Sri Krishna, and he was an ocean of mercy. So no one, however, could recognize him by his dress. By the will of fate, he came to Sri Advaita Acharya's house. Chaitanya Bhagavat Adi Leela 1.11. ये He सब came चैतन्य भागवत में डिटेल में वर्णन है, चैतन्य चरितामृत में ज्यादा डिटेल नहीं है। चैतन्य ये ईश्वरपुरी का जो विजिट है नवद्वीप में, इसका वर्णन चैतन्य भागवत में ज्यादा है। चैतन्य चरितामृत में तो बहुत वर्णन नहीं है ना। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि कैसे दीक्षा लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु के अंदर परिवर्तन आया, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में ज्यादा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से कब मिले थे नवद्वीप में ईश्वरपुरी, इसका सब डिटेल चैतन्य भागवत में है। यस he came to where Sri Advaita Acharya was engaged in worshipping Sri Krishna quietly sat down there. By his divine luster, one Vaishnava cannot remain hidden from. Next, Prabhuji. कर दिया। Okay. One Hidden from Vaishnava another. one Vaishnava cannot remain hidden from another. Advaita Acharya began to look in his direction again and again. Finally, he asked him, Bap, who are you? I have a feeling you are a Vaishnava sannyasi. Sri Ishwarapuri very humbly replied, I am a low-class Shudra, come to view your lotus feet. Mukunda Datta, who was also present, could also understand that that is a Vaishnava sannyasi, and thus he contrived to expose him. In his sweet voice, he began a kirtana describing Sri Krishna's pastime. When Sri Ishwarapuri heard that kirtana, he at once fell to the ground, and the earth beneath him became wet with his tears. The devotees present were dumbstruck. We haven't seen a Vaishnava like this before. Advaita Acharya very firmly embraced him. Now everyone could understand that this is Madhavendra Puri's dearmost disciple, Sri Ishwarapuri. Shouts of Hari Hari rose up into the air. Sri Ishwarapuri remained at Navadvip for some days. One day when Nimai Pandit was returning home from the school, he happened by chance to meet Sri Ishwarapuri on the way. Sri Ishwarapuri was as though mesmerized while looking at the son of Sachi, and thought of himself, he has all the indication of being a divine personage, and appears very grave indeed. Srila Ishwarapuri inquired, O Vipravar, may I know your name? Where do you live? What is the manuscript in your hand? Mahaprabhu very humbly offered his namaskar. Some of his disciples replied, his name is Nimai Pandit, exclaiming, you are the famous Nimai Pandita. Ishwarapuri felt very happy to meet him. Mahaprabhu, coming forward and bowing his head, humbly requested, Sripad, please come with me to my house and be my guest for lunch. Ishwarapuri thought to himself, what a pleasant demeanor he has. As though charmed by some mantra, he quietly came along with the Pandit to his house. Arriving there, Mahaprabhu personally washed his feet, while in the deity room, Sachi Mata offered the various preparations that she had prepared to the Lord. Then Mahaprabhu served that prasadam to Sri Ishwarapuri and afterwards accepted his remnants. Thereafter, they sat in the temple Vishnu Graha and discussed Krishna Katha, by which they both become filled with ecstatic love. Sri Ishwarapuri thus remained at Navadvip for a few months, staying at the house of Sri Gopinath Acharya. Every day Mahaprabhu would come to have darshan of his lotus feet, and occasionally he would invite him for lunch. At that time, Srila Gadadhar Pandit was just a young boy, and Ishwarapuri was very affectionate to him. He began to teach him from his book, which he had composed, Sri Krishna Lilamrita. One evening, when Mahaprabhu had come to offer his obeisances to Ishwarapuri, Srila Puripada spoke to him. You are a great Pandit. I have composed a manuscript about Sri Krishna's pastime. If you would please hear it, then I can recite it before you, and you can correct any mistakes that there might be. I will be very pleased if you do this. Mahaprabhu replied smilingly, whatever a devotee speaks is dictated by Sri Krishna himself. If anyone sees any fault in this, then he is simply a sinful wretch.
Whatever poems he composes, certainly Krishna is very pleased by that. Krishna accepts the mood in which things are offered as the most substantial part of the offering. To Ishwarapuri, these words were like drops of nectar, and he could understand that Srinimai Pandit was an extraordinary person. After passing some days in Nadia, Ishwarapuri continued his tour of the holy places. यस, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेसन कि गोपीनाथ आचार्य घर में रहते थे, चैतन्य महाप्रभु से रेगुलरली मिलते थे निमाई से, और कभी कभी निमाई के घर में जाके प्रसाद भी लेते थे, और गदाधर पंडित के प्रति भी उनका बहुत स्नेह था। और एक बार इन्होंने किताब लिखी थी कृष्ण लीलामृत, श्री कृष्ण लीलामृत, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा था कि अगर इसमें कुछ गलती हो तो आप इसको चेक करिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मतलब एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, और जब से उन्होंने केशव काश्मीरी को परास्त किया था तब से तो उनकी प्रसिद्धि फैल नहीं चुकी थी निमाई की। तो सभी जानते थे कि निमाई एक मतलब व्याकरण का पंडित है। तो व्याकरण की जांच कराने के लिए ईश्वरपुरी ने कहा कि आप कृपया करके इसे जांच करिए, और तब महाप्रभु ने कहा कि जो भी भक्त लिखता है वो परफेक्ट होता है। क्यों परफेक्ट होता है? क्योंकि इट इज डिक्टेटेड बाय कृष्ण हिमसेल्फ, है ना, और कृष्ण भाव को स्वीकार करते, व्याकरण को नहीं, है ना। तो ये बात महाप्रभु ने बोली किसको? ईश्वरपुरी को, ठीक है। मीनवाइल Meanwhile, Mahaprabhu was bringing his pastimes of learning to a close and now desired to reveal his true self and establish the religions of the age by distributing love of Godhead through the chanting of the holy names. Thus, he came to Gaya ostensibly to offer Pinda for his departed father and forefathers. Sri Ishwarapuri was present at the time at Gaya. After having offered Pinda at the various holy shrines, he finally came to the place where the lotus footprints of Sri Vishnu are. While taking darshan and hearing of the glories of the shrine, Mahaprabhu fainted and fell to the ground. By the arrangement of the Providence, Sri Ishwarapuri happened to come to that spot just then and learn from Sri Chandrasekhar Acharya what had transpired. After a short time, Mahaprabhu regained his consciousness and seeing Ishwarapuri, he got up to offer his obeisances. Sri Ishwarapuri embraced him and the two of them were drenched by each other tears of love. Mahaprabhu addressed Ishwarapuri, "My journey to Gaya is successful just by seeing your lotus feet. If one offers Pinda at this holy place, then forefathers become delivered. But simply by seeing you, tens of millions of forefathers get liberation. Therefore, your presence is more auspicious than that of this holy Tirtha. All of the holy Tirthas pray for the dust of your lotus feet. Therefore, O Puripada, I am praying at your lotus feet to ferry me across the ocean of material existence and to cause me to drink the nectar from Krishna's lotus feet." यस, Shri बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि भाई पिंडदान करने से तो, है ना, कुछ फोर फादर्स को उद्धार होता है ना, लेकिन आपका दर्शन करने से तो मिलियंस ऑफ फोर फादर्स को उद्धार हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे एक वैष्णव के संग और वैष्णव के दर्शन की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले उन्होंने एक जगह, एक्चुअली यहाँ से टीचिंग्स हम ले सकते हैं कभी भी। जैसे मान लीजिए महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को बोला कि वैष्णव के ग्रंथ में कोई गलती नहीं होती है ना, और तो कभी भी जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई पॉइंट निकल के आता है तो हम कोट कर सकते कि चैतन्य महाप्रभु ने ये बात बोली थी ईश्वरपुरी को, फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट चैतन्य महाप्रभु ने बोला था ईश्वरपुरी को यहाँ पे। तो इस तरीके से वो कॉन्टेक्स्ट को याद रखने से कोई भी, देखिए कोई भी सिद्धांत को अगर हम रेफरेंस देकर के कोट कर देते हैं ना तो उसमें बहुत बल मिलता है ना। जैसे अभी मैं क्लास दे रहा था, वहां पे क्लास मतलब मेरा एक प्रेजेंटेशन था इधर पे NYPC में, नेशनल यूथ पिक्चर कन्वेंशन में। तो मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक था CSR एंड फंड रेजिंग। तो मैं कल रसराज को बोला, मैंने कहा सब लोग, मेरा प्रोफाइल पोर्टफोलियो बदल गया है, सब लोग मुझे फंड रेजर समझते हैं, है ना। मैंने कहा मेरे पास कोई फंड नहीं है। तो रसराज आंसर था, प्रभु जी इसलिए तो फंड रेज कर रहे हैं। तो मैं वहां पे क्लास दे रहा था। तो मैं सबसे पहले शुरुआत कैसे किया, मैंने कहा देखिए भागवत में लिखा गया है, नारद मुनि के संवाद हो रहा है युधिष्ठिर महाराज से, और नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि गृहस्थों को धन कहाँ से प्राप्त होता है, दिव्यम भौमम च अंतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम। तो फिर मैंने ऐसे बोला
तो मैंने कहा देखिए यहाँ तो गृहस्थों को धन नहीं चाहिए, यहाँ तो ब्रह्मचारियों को धन चाहिए। तो आज तो मैं ऐसे कोट के लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगे। तो कॉन्टेक्स्ट को कभी कभी आप हिट कर देते हैं ना, तो लोगों को रिलेटेबल लगता है। तो वही बात यहाँ पे हो गई कि अगर आप कभी भी कोई जैसे पिंडदान की बात आती है, तो भाई वैष्णव का दर्शन करना भी हजारों लाखों बार पिंडदान करने से ज्यादा ये है, मतलब इफेक्टिव है ना। और वैष्णव के द्वारा लिखे गए शास्त्र में कोई गलत नहीं होता है, क्योंकि व्याकरण भगवान नहीं कैच कर रहे, भगवान तो भाव चेक कैच कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हम एग्जैक्टली कोट कर सकते हैं। तो ये सब सेक्शन जब हम पढ़ते हैं तो याद रखना चाहिए हमें कि चैतन्य है ना, कि ईश्वरपुरी के बारे में जब बात आएगी तो क्या क्या याद रखना। ईश्वरपुरी ने क्या किया था? ईश्वरपुरी ने अपने गुरु की सेवा करी थी। मल मूत्र, जब ईश्वरपुरी मतलब एक्चुअली दो भक्त थे, दो शिष्य थे माधवेंद्रपुरी के, जिनके व्यवहार को स्टडी किया गया है चैतन्य चरितमृत में। एक का नाम है ईश्वरपुरी, दूसरे का नाम कौन बताएगा? प्रकाश प्रभु याद है? दो शिष्य थे। रामचंद्रपुरी प्रभु जी। क्या प्रभु? जी, रामचंद्रपुरी। यस, रामचंद्रपुरी। तो रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी, इन दोनों के चरित्रों की स्टडी की। ईश्वरपुरी को माधवेंद्रपुरी कृपा क्यों मिली? इन्होंने वृद्धाश्रम में और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ अपने गुरु की सेवा करी। अच्छा, रामचंद्रपुरी ने क्या किया? तो जब रामचंद्रपुरी, ऐसा बताया गया है कि जब वृद्धावस्था में और बिल्कुल अंतकाल में, और जब माधवेंद्रपुरी चीख चीख करके पुकारते थे, रोते थे, है ना, कृष्ण को पुकारते थे, कृष्ण आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, है ना, रोते थे। तो रामचंद्रपुरी जाकर के अपने गुरु को उपदेश दे रहे हैं। बोले अरे रोने की क्या जरूरत है, तो ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है, और ऐसा और वैसा। पूरा उसका दिमाग खराब हो गया था। तो माधवेंद्रपुरी ने बोल दिया रामचंद्रपुरी को, तुम भाग जाओ यहाँ से, मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, अपना चेहरा मत दिखाना मुझे, इस तरीके से। क्योंकि अपने गुरु को उपदेश देने लगे, अरे रो क्यों रहे हैं, कृष्ण तो सबके पास में है, अब रोने की क्या जरूरत है, और इस तरीके से। वो सोच रहा है मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया है इस तरह गुरु जी को उपदेश देकर के। तो ये दो शिष्यों के मतलब व्यवहार की स्टडी की गई है, और उससे पता चला कि एक सब शिष्य को कैसा होना चाहिए, है ना। तो ये सब कॉन्टेक्स्ट है, ये सब शास्त्रों के शास्त्रों में जो ये सब कॉन्टेक्स्ट दिए गए हैं, जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? शास्त्रों को हम इंप्लीमेंट कर सके अपने जीवन में। थ्योरी रिमेन्स थ्योरी अनटिल अनलेस वी डोंट हैव केस स्टडीज। तो केस स्टडीज क्यों दी गई है? पुराणों में और वेद में क्या अंतर है? ये तो अंतर है, पुराण वेद में थ्योरी दी है, उसका वेद का पूरक है पुराण। यानी उसमें वेदों में जो थ्योरी दी गई है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसका केस स्टडीज कहाँ पे दिया गया? पुराणों में दिया गया है। तो पुराण को जब कोई, पुराणों की स्टोरीज के माध्यम से वेद के सिद्धांत रिवील हो जाते है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए यहाँ से। Sri Ishwarapuri replied, please hear me, Panditji. I have understood that you are an incarnation of the Supreme Lord. This morning I saw a very auspicious dream, and now that has actually materialized. From the first day, I have always thought of you. I get such pleasure by seeing you, as much pleasure I get by seeing Krishna. Hearing this, Mahaprabhu bowed his head and smilingly replied, this is my great fortune. On another day, Mahaprabhu approached Sri Ishwarapuri and requested that he initiates him with the divine mantra. My mind is becoming very restless in anticipation of this initiation. Srila Puripad very blissfully replied, what to speak of mantra? I am prepared to offer you my very life. Therefore, Srila Ishwarapuri initiated Mahaprabhu with the divine mantra. One morning, Srila Ishwarapuri came to where Mahaprabhu was staying. Mahaprabhu was extremely pleased to see him, and after offering his obeisances, he invited him to stay for lunch. Ishwarapuri replied that being able to accept foodstuff from your hand is a matter of great fortune for me. Mahaprabhu himself cooked and then very carefully served his Guru the prasadam. Afterwards, he smeared sandalwood paste on his body and put a garland of flowers around his neck. Thus, the Supreme Lord himself taught how one should serve his Guru. Without serving the great devotee, it is not possible to receive love of Godhead.
Service to Guru is the door to devotion. On his return from Gaya, Mahaprabhu came by way of Kumarhatta, the birthplace of his Guru, and began to roll on the grounds in ecstasy there, as the ground became wet with his tears. Finally, he collected some dust from this holy place and bound it in the corner of his upper garment, saying, "This dust is as dear to me as my life." Then he set out for Navadvip. The birthplace of Shri Ishwara Puri is located within the present town Haliahor, which is near the Para rail station, which is on the Silda Jalda Krishnanagar line. Salda Krishnanagar line. One should get down at Kanchrapara station and then proceed by rickshaw to Chaitanya Doha. Doha means pond, which is what was created when many followers of Chaitanya Mahaprabhu, following in his footsteps, came here and collected earth from the birthplace of Srila Ishwara Puri. Wow. Therefore, Mahaprabhu accepted sannyas and by order of his mother came to live at Jagannath Puri. By this time, Ishwara Puri had already left the world. हरे कृष्ण। खिले ईश्वर पुरी की जय, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। तो इस पे कुछ चर्चा है, इस कोई जिज्ञासा इस पर्टिकुलर प्रसंग से? प्रभु जी, जो एग्जाम्पल था कि चैतन्य महाप्रभु ट्रंक भी है, गार्डनर भी है, एंजॉयर भी है और वो देते भी है। तो ये जो चारों चीज है वो खाली लाइक यूनिवर्स में चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ही लागू होगा ना, आई थिंक। मतलब कृष्णा तो भक्ति नहीं देते ना, लाइक मैं सुना था। नहीं, देखो बड़ा एक अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। एक श्लोक है, अहम वेत्ति व्यास वेत्ति, नहीं अहम वेत्ति शुक वेत्ति, सुना है श्लोक? नहीं प्रभु। निखिलेश प्रभु सुना है? यस प्रभु जी, यस प्रभु। वेत्ति शुक वेत्ति, ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवताम ग्राह्यम न बुद्ध्या न च टीकया। बोल रहे हैं अहम वेदामि शुको वेत्ति। अहम मतलब शिव जी बोल रहे हैं मैं जानता हूं, मैं भागवत जानता हूं। अच्छा, आप भागवत जानते हैं? ओके। और शुको वेत्ति, शुक भी जानते हैं, मतलब सुखदेव गोस्वामी जानते हैं। व्यासो वेत्ति ना वेत्ति वा, व्यासदेव शायद जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते। अरे भैया, व्यासदेव ने भागवत लिखी है, लेकिन शिव जी कह रहे हैं वो जान भी सकते हो, नहीं भी जान सकते हैं। पढ़िए जरा, ट्रांसलेशन पढ़िए जरा। लॉर्ड शिवा सेड, I may know Sukadev Goswami, the son of Vyasadeva may know, and Vyasadeva may know or may not know Srimad Bhagavatam. हाँ, व्यासदेव मैं जान सकता हूँ, सुखदेव जान सकते हैं, लेकिन व्यासदेव जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? फिर आगे क्या लिखा है? On the whole, Srimad Bhagavatam, the spotless Purana, can be learned only through devotional service, not by material intelligence, speculative methods, or imaginary commentaries. यस। तो ये जो पहला जो दो लाइनें श्लोक का, अहम वेदामि शुको वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा, भाई व्यासदेव जान भी सकते, नहीं भी, इसका अर्थ क्या हुआ? भाई व्यासदेव तो भागवत लिखी, हमको यही पता है, फिर बोल रहे शिव जी की व्यासदेव शायद नहीं जानते भागवत। अरे भाई लिखी क्या फिर? क्या अर्थ हुआ इसका? यस प्रभु, निखिलेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्लास में था कि जैसे भगवान शिव कह रहे हैं कि जैसे हैं वो अच्छा, हाँ, क्या सुना था? कह रहे थे कि जैसे भगवान व्यासदेव है, जो भगवान के लिटरेरी इंcarnation है, हाँ। तो यदि उनको उस रूप में देखा है कि व्यास भगवान है वो नहीं जानते, किंतु यदि उस रूप में देखा जाए कि व्यास भक्त हैं तो उस रूप में जानते हैं। यस। अगर व्यासदेव भगवान है तो शायद भागवत नहीं जानते हैं, लेकिन अगर व्यासदेव भक्त है तो भागवत जानते हैं।
तो अहम वेदामी शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अगर भगवान है तो भक्ति नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर भक्त है तो दे पाएंगे। सेम एनालॉजी। सौरभ प्रभु यस क्लियर प्रभु जी, हुआ? हाँ हाँ, ये श्लोक पता रहता मुझे, बहुत अच्छा देखिए श्लोक है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है आश्रय, होता है विग्रह। मतलब आश्रय और क्या बोलते गोविंद महाराज बताते हैं ना, विषय। भक्ति का आश्रय और भक्ति का विषय मैं आपको बताता हूं, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है आश्रय, एक होता है विषय। ये दो वर्ड्स को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति का आश्रय क्या है और भक्ति का विषय क्या है। मान लीजिए भक्ति की तुलना अगर करी जाए, सपोज करिए भक्ति की तुलना अपन करें किससे, हॉट चारकोल से। हॉट चारकोल, भक्ति की तुलना करिए मान लीजिए हॉट चारकोल से। अब हॉट चारकोल को अगर जिस पॉट में रखेंगे, जैसे मान लीजिए नहीं, जैसे मान लीजिए एक पॉट है, इस पॉट में हुई, यस, ये हॉट चारकोल को एक पॉट में रखा है, तो इसका विषय विषय विषय, हाँ, अगर हॉट चारकोल को एक पॉट में रखा है तो उस हॉट चारकोल का आश्रय क्या हुआ, पॉट। पॉट। और जो उस हॉट चारकोल से हाथ तापेगा सर्दी के मौसम में, वो विषय है, जो उसको भोगेगा, जो उसको एंजॉय करेगा। तो भक्त का जो हृदय होता है वो होता है भक्ति का आश्रय। ये हॉट चारकोल है भक्ति, और जो उस भक्ति को एंजॉय करेगा वो है विषय। तो राधा रानी क्या है, आश्रय, आश्रय। और कृष्ण क्या है, विषय, विषय। प्रभुपाद क्या है, आश्रय, हाँ, और कृष्ण क्या है, विषय, चैतन्य महाप्रभु क्या है, दोनों। दोनों। समझ रहे हैं? तो अब जब हम बोलते हैं कि वो भक्ति को एंजॉय करते हैं, तो वो तो होगा विषय। वो प्रेम को एंजॉय कर रहे हैं, प्रेम के फल का एंजॉयमेंट कर रहे हैं, विषय हो गए। वो प्रेम के फल को बांट रहे हैं, वो क्या हो गए, आश्रय भी है, आश्रय। विषय। तो चैतन्य महाप्रभु आश्रय भी होगा, विषय भी हो गए, उस सेंस में, है ना। क्लियर हो गया? यस प्रभु। यस। और कुछ? ठीक है। प्रभु जी, प्रभु हाँ, जी, यस। और एक बार बता दीजिए। आश्रय और विषय। हाँ प्रभु जी। हाँ, देखो, भक्ति जिस स्थान पे रहती है उसको कहते हैं आश्रय, है ना। आश्रय मतलब भक्त का जो हृदय होता है उसकी तुलना एक पॉट से करी गई, एक लोटे से करी गई है, और भक्ति की तुलना करी गई हॉट चारकोल से। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने एक वक्तव्य में इस तरह की एनालॉजी दिए थे। और उस हॉट चारकोल को हाथ कौन तापेगा, जो विषय है उसका। भक्ति किसके लिए है, किसके लिए? ये उल्टा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, एक आपके पास लोटा है, लोटे के अंदर दूध है, तो लोटा है आश्रय, उस दूध का आश्रय, और वो दूध आप ऑफर करोगे कृष्ण को, तो कृष्ण है भोक्ता, वो है विषय। तो भक्ति को कौन भोगेगा, आपके अंदर की भक्ति को कौन एंजॉय करेगा, कृष्ण। कृष्ण एंजॉय। तो कृष्ण है विषय, और आप हो गए आश्रय, जिसके हृदय में भक्ति है। समझ गए ना?
तो हाँ भक्त प्रभु जी। बोला जाता है, आश्रय मीन्स डिवोटी, आश्रय मीन्स डिवोटी, है ना, और विषय मीन्स लॉर्ड। ठीक है ना, क्लियर हो गया। प्रभु जी। इसको कहते हैं आश्रय तत्व, विषय तत्व, है ना। तो कोई तत्व, कोई आ रहा है आश्रय तत्व, मतलब भक्ति के बारे में बात हो रही है ना। जैसे यहाँ पे व्यास क्या है, चलो शिव जी क्या है, आश्रय के विषय, हम्म, शिव जी क्या शिवजी है, तो आश्रय नहीं हो, आश्रय है। सुखदेव क्या है, आश्रय। अच्छा व्यासदेव क्या है, वो मे भी आश्रय या मे भी विषय है, ये भी उनके ऊपर आश्रय में डिपेंड भी करता विषय, डिपेंड। उनको भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो आश्रय है, विषय है, और विषय। भक्त की दृष्टि से देखा जाए तो आश्रय है। ठीक है ना। ठीक है। हाँ प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिल प्रभुपाद की है। जय। जय जय। जय।